about the Maharaj because his glories are enormous. But by the order of Prabhuji, I will try to speak something, whatever I have written. Dear most worshipful His Holiness Bhakti Swami Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. On this most sacred and auspicious occasion of your Vyas Puja, my heart feels both full and inadequate, full with gratitude for your boundless mercy, yet inadequate in finding words that can truly capture the depth of your compassion, sacrifice, and divine service within International Society for Krishna Consciousness. Maharaj, your life is a living embodiment of the Sartric conclusions regarding the role of the spiritual master. As stated in Bhagavad Gita 2.41, website ka buddhir eke purmanandana bahusaka hananta cha buddhiyo avasyainam. One who is on this path is resolute in purpose and his aim is one. Your life perfectly demonstrates this Satvika Buddhi, fixed, determined intelligence in executing the mission of Guru and Krishna without deviation. Similarly, the process of approaching and being purified by the spiritual master is described. Tad vidi pratipadena pariprashnena sevya udeshanti te jnanam jnananas tasdarsina. Approaching a bona fide spiritual master with humility, inquiry and service. Maharaj, through your guidance, so many conditioned souls have learned how to properly approach spiritual life, and by your mercy, their hearts are gradually being purified. The transformative power of the Guru is also glorified in the Srimad Bhagavatam as Tasmat Gurum Prabhade Jigyasu Shreya Uttamam Shabde Paricha Nishnatam Brahmanyayu Pakshamashrayam. One who desires the ultimate good must surrender to a bona fide spiritual master. You embody this qualification, being deeply realized in Shastra and fully sheltered in the absolute truth, and thus capable of guiding others beyond material confusion. As expressed in Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, 13th verse, the perfection of all devotees is to be the Supreme Lord. Maharaj, your constant emphasis on Varnashrama is not external. It is deeply rooted in this principle of Haritoshanam, preaching Krishna through one's prescribed duties. Your efforts in Gosheva and Vedic living also resonate with the mood of protection and care that runs throughout the Bhagavatam. By encouraging cow protection and sustainable communities, you are helping re-establish Dharma in most essential and compassionate form. Pure devotion is rarely achieved, but is available one should eagerly accept it. Maharaj, you are distributing this rare treasure freely, awakening greed in the hearts of sincere souls for Krishna Bhakti. In serving you, devotees feel they are being connected directly to Krishna because you faithfully carry his message without distortion. Maharaj, this your Namhanta preaching is also like a flowing river of mercy, entering countless homes and purifying hearts. Through your tireless outreach, the holy name has become accessible to so many who otherwise may have never encountered it. Your connection with youth is deeply transformative. You awaken faith, clarity, and purpose in hearts searching for meaning. Your global projects reflect not only organization but deep compassion. In many countries, you established
not just centers but spiritual families, places where devotees can grow, serve, and feel sheltered. Your strong emphasis on Varnashram Dharma, Gurukul, Vedic education, cow protection, and Vedic agriculture is a direct continuation of Srila Prabhupada's deeper vision. You are not only preserving teachings, you are giving them practical shape in today's world. Your vision for expanding communities like Gita Nagari and establishing Varnashram College gives hope that a spiritually centered civilization is not just an ideal but an emerging reality. Your constant engagement to study Srimad Bhagavatam has nourished countless devotees. Through your guidance, scripture becomes alive, relevant, and transformative. Your love for Sri Chaitanya Mahaprabhu flows through your preaching, inspiring others to take shelter of the holy name with sincerity and joy. Above all, your love for devotees is deeply personal and transformative. You uplift, guide, and care in ways that cannot be measured. In your association, one feels closer to Krishna. Maharaj, on this sacred day, I pray to remain under your guidance. Please bless me that I may develop steadiness, sincerity, and service and teach you in my spiritual journey. Thank you. Request from Mataji, please. And then Parmat Guruji and Babaji. So when Maharaj was there in Mayapur at the beginning, we all know that how Maharaj lost his leg. Mayapur was the very beginning phase of Mayapur development. So when the bomb was blasted there at the end, the Guru came afterwards, they were searching all the devotees that were there. So how Maharaj was recognized? Maharaj कैसे पहचान लगा उन्हें? सब तो पूछ रहे थे तो नीचे से वो आवाज सुनाई पड़ी, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तब तो और बड़ा नहीं कोई बात वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे गए वहाँ पर उस समय भी महाराज भगवान का नाम है। Short past mark. First of all, I would like to thank Anjali Mataji and Reshma and all many of us members over here. And I am very grateful that I am in Kenya this because here only I received the knowledge of Krishna. Otherwise, I wouldn't know how, I wouldn't know where would I have. So I would like to thank each and everyone who supported us to organize this Maharaj. Very grateful to all of you. नामस्ते गौरसदा सर्वमानम नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। On the most auspicious occasion of the 80th Vyas Puja of His Holiness Bhakti Raghav Swami Guru Maharaj, I offer my heartfelt obeisances and deepest gratitude at His lotus feet. Guru Maharaj stands as a shining example of unwavering dedication to the mission of Srila Prabhupada. His life is a living testimony of courage, sacrifice, and unshakable faith in the service of Guru and Gauranga. Even in the face of grave adversity, when he was brutally attacked in Mayapur and lost his leg due to a bomb blast, Guru Maharaj did not allow his spirit to diminish. Rather, he transformed that suffering into deeper surrender and intensified his preaching efforts. His determination reminds us that true devotion transcends bodily limitation and rests firmly in the soul's connection with Krishna. Guru Maharaj has been a strong
and consistent advocate of Varnashram Dharma, emphasizing its vital role in creating a balanced, peaceful, and spiritually progressive society. He teaches that real prosperity is not measured by material accumulation but by harmony with Dharma, simplicity of living, and purity of consciousness. With great conviction, he highlights the importance of protecting cows and Brahminical culture. Guru Maharaj repeatedly reminds us that cow protection and the cultivation of Brahminical qualities are the foundation of a healthy and peaceful civilization. Without this, society loses its spiritual direction. He beautifully explains that the roots of Vedic culture lies in village life, where simplicity, self-sufficiency, cow protection, and spiritual practices naturally flourish. His vision inspires devotees to reconnect with his timeless principles and build communities centered on Krishna consciousness. I am fallen and unqualified, but by your mercy, I have received the opportunity to connect with Krishna consciousness. Please bless me that I am follow your instruction and serve the Vaishnava and chant the holy names with sincerity. On this sacred Vyas Puja day, I pray for your continued health, strength, and long life, so that you may go on guiding countless souls toward a life of devotion, discipline, and divine realization. All glories to His Holiness Bhakti Raghuswami Maharaj Ki Jai. All glories to his tireless service and profound teachings. All glories to Sri Guru and Gauranga. Thank you for giving me the opportunity. बहुत शुक्र है ना, ये आपके डिज़ायर थे कि हॉल में प्रोग्राम हो। नहीं मतलब आप लोग का आशीर्वाद है। बात नहीं हुई होती फोन पे तो और आज सुबह कोरोना के बारे में फोन करते हैं इसके बारे में समझते हैं और हमारा पूरी दिखाई पूरी दिन हम लोग हमारा शाम में पूरी दिन हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामिनिति नामिने नमस्ते गौर सेवायं सदा निवेदितात्मने वरेपोपादाथ वर्णाश्रम प्रचारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष पुण्यवादी पाचादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मैं हिंदी में बात मेरी कोई योग्यता नहीं है यहाँ पे आके व्यास आसन पे बैठ के गुरु महाराज के प्रति गुणगान करने की, परंतु व्यास पूजा सब मतलब गुरु महाराज की जिस दिन व्यास पूजा रहती है उस दिन हमें जो शिष्य है उन्हें अपने अपने गुरु महाराज के लिए कुछ न कुछ 2 या 3 पंक्तियाँ या लाइनें बोलनी आवश्यक है। क्यों? वाई? क्योंकि जैसे हमारे माता पिता हमें ये जन्म देते हैं, पर हमें ही पता, मतलब मैं मेरी बात करूँ, मुझे ही पता है कि मैंने दीक्षा से पहले क्या किया, कितना असभ्य था, क्या नहीं, मुझे सब पता है। बट आफ्टर दैट जब यहाँ पे कुवैत में माता जी मेरे घर के 2.5 किलोमीटर के पास इस्कॉन टेम्पल था, मैं कभी नहीं गया। 2.5 किलोमीटर, पता नहीं ये क्या नसीब में था कि कुवैत में आके ही जो थोड़ी बहुत भक्ति कर पा रहे हैं वो मिली, वरना वो मुझे कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं थोड़ी। तो ये गुरु महाराज और सब वैष्णवों की कृपा है। जब भी गुरु महाराज हम आपको याद करते हैं या देखते हैं या कुछ दुविधाओं में मैं रहता हूँ, तब महाराज मैं हमेशा आपको याद करता हूँ। और याद इसलिए आती है कि आपकी जो विनम्र स्वभाव और दृढ़ता, हमने कभी देखा है कोई आदमी अगर विनम्र है पर इतना दृढ़ नहीं, पर महाराज दृढ़ता, साहस और विनम्रता एक साक्षात उदाहरण है। जैसे अभी अगर आप इस्कॉन डिज़ायर टी में जाएंगे तो भक्ति राघव स्वामी महाराज का ऑडियो लिखेंगे तो वहाँ पे एक
हीरोज ऑफ मायापुर करके एक ऑडियो है, उसमें गुरु महाराज का एक शायद 36 मिनट का एक इंटरव्यू है। उसमें महाराज बताते हैं कि कैसे उस दिन जो कुछ हुआ हादसा, वो पूरा महाराज ने डिटेल में बताया है। मतलब पहले जब महाराज जब सन्यास नहीं थे तब उनका नाम था राघव पंडित दास। तो जो पुष्प समाधि है अभी मायापुर में, उसके सामने ही ब्रह्मचर्य आश्रम था। वहाँ पे एज अ ब्रह्मचारी महाराज और कुछ अन्य भक्त डिवोटी सर्व कर रहे थे। तो जैसे ही वहाँ पे कुछ आवाज़ आई मंदिर में, जैसे वो वहाँ पे मायापुर में उस दिन डकैतों का बहुत उत्पीड़न हुआ करता था, तो डकैतों ने जैसे ही वहाँ पे हमला किया था, बूम बूम ऐसे 2-3 आवाज़ आई। तो उसमें लिखा, मतलब महाराज बताते हैं, वैसे ही ये सब गुरु महाराज और सब दूसरे महाराज वहाँ पे भागे उधर, और उनके सामने जब भागे तब कुछ अस्त्र शस्त्र था नहीं। तो महाराज ने जो ब्रिक्स थी, ईंटें ब्रिक्स, वो उठा ली वहाँ पे। उठा के बता रहे महाराज कि एक दीवार थी, वो दीवार को फांद गए और अंदर चले गए। और जब डकैतों ने देखा कि कोई आदमी कोई आ रहा है, तभी उनके एक पैर पे उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था। और देखते हैं महाराज बैसाखी पे है, ये हादसा हुआ था। और मुझे जैसे बताया कि जब वो मूर्छित पड़े थे, वो मूर्छित नहीं थे, हरे कृष्ण का जब वो कंटिन्यू कर रहे थे, वहाँ से बाद में उन्हें जो गुरु भाई थे वो ले गए मायापुर लोकल हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो जो डॉक्टर है वो बोल रहे हैं कि अभी भी मतलब कैसे, मतलब, और वहाँ पे उनका नित्य वो जो जब है वो चल ही रहा है। उधर से बाद में महाराज को कोलकाता लेके गए थे। ये पूरा इंटरव्यू में आया, आप लोग देख सकते हो, उसमें पूरा बताया महाराज ने। महाराज का वहाँ पर ऑपरेशन हुआ कोलकाता। तो लोग तो मतलब ये है कि गुरु महाराज की जो दृढ़ता है, और अपने गुरु महाराज मतलब इसी भक्तिदास श्रील प्रभुपाद की उनके प्रति जो उनका दृढ़ संकल्प है, हमें महाराज में साक्षात देखने को मिलता है। जैसे प्रभुपाद ने, मतलब हम सब भक्त जानते हैं कि उन्होंने बताया था अपने लास्ट में जब लीला संपन्न हो रही थी प्रभुपाद की, कि उनका भी 50% वक्त जो बाकी है उसका पूरा जिम्मेदारी गुरु महाराज ने उठाई। और आप अगर आज जाके अभी मेरा 2024 में मेरा सौभाग्य हुआ आप सब वैष्णव कृपा से शीतल के साथ हम दीक्षा के लिए वो भी मायापुर में ही गए पहली बार। वहाँ पे जो VCF जो अरुणाचल कॉलेज फाउंडेशन थी, मैं देख रहा था गुरु महाराज अभी भी 78 ईयर्स की उम्र में उधर थे, खड़े थे, और पूरा दिन जो वहाँ पे जो सत्संग कार्यक्रम था, जो दीक्षा समारोह था, उनकी निगरानी के सामने खड़ा हुआ पूरा। वो जो वहाँ पे जो हवन कुंड था, हवन के कुंड के ऊपर पूरा वहाँ पे पहले अभी आप गए रहेंगे तो छत थी, पहले छत भी नहीं थी, तो वहाँ पे सूखी घास लगी हुई थी, और इतना अद्भुत मनोरम दृश्य था वो। मतलब मैं देख रहा था महाराज उधर खड़े हैं, आ रहे हैं बैसाखी के सहारे। हम इधर से अहमदाबाद जाते हैं, मैं गुजरात का हूँ, तो ये पैर दुखने लगती है कि भाई ये थक गए। मुंबई जाते हैं, ये पैर दुखने लगे, और वो महाराज कंटिन्यू खड़े हैं वहाँ पर, कंटिन्यू खड़े हैं। मैं अचंभित रह गया कि कैसा उनका दृढ़ संकल्प, दृढ़ साहस, अजम्य साहस बोल सकते हैं उसको। तो लास्ट टाइम जब और एक किस्सा था, मैं सुना था, जैसे 2001 to 2005 गुरु महाराज वाज इन इंडोनेशिया इन पुंचाक सिटी। वहाँ पे जैसे ही लैंड टू इंडोनेशिया, फ्रॉम इंडोनेशिया टू द पुंचाक देयर इज वन सिटी, और वहाँ पे एक ब्रह्मचरी थे, अपना इस्कॉन सेंटर था। तो वहाँ से महाराज दे आर गोइंग फॉर विलेज प्रीचिंग, हाँ बाई साइकिल। वो महाराज जो भक्त थे उनकी साइकिल के पीछे बैठ के जाते थे, वहाँ पे सुविधा उस टाइम पे नहीं थी कार की। इस हालत में महाराज इंडोनेशिया में प्रचार किया है। और अभी वहाँ पे उनके जो एक शिष्य है हमारे गुरु भाई कृष्ण किशोर प्रभु, उनके साथ से, और महाराज ने वहाँ पे जो विश्वविद्यालय थे वहाँ से नए डिवोर्स को, मतलब उनको इंडोनेशिया में कैसे प्रगति करनी है भक्ति ने, उन लोगों ने वहाँ पे गीता नगरी बरू करके एक विलेज है, सिटी, वहाँ पे गीता नगरी एक निबंध भी है प्रभुपाद का, गीता नगरी ऐसे करके, सेम मेक इन वृंदावन विलेज के वृंदावन ग्राम कैसे बना, उसका आधार पे वहाँ पे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। करीबन 60 हेक्टर एकड़ ज़मीन है वहाँ पे, 60 हेक्टर एकड़ ज़मीन में 20 हेक्टर में ये सब समुदाय कृषि कर रहे हैं, 20 एकड़ में 50 से 60 फैमिली रह रही है उधर, और बाकी 20 एकड़ में कॉलेज आश्रम वहाँ पे सब खुल गया। तो महाराज के जो इतने कृपाचंद्र है महाराज, और उनके शिष्यों ने अभी यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में रत्नागिरी में लांजा तालुका है, उधर उनके एक शिष्य है श्यामानंद दास प्रभु जी, जैसे अभी प्रभु ने बताया, वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे।
He's a software engineer. He left because of words of Guru Maharaj. He left all the thing, and he and his children, they are doing agriculture farming. गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, जब यहाँ पे 2025 में फरवरी में महाराज घर पे आए थे तब, कि वहाँ पे जो ज़मीन थी इतनी कड़क थी, मतलब वो वहाँ पे ट्रैक्टर के अलावा कुछ नहीं कर सकते उखेड़ने के लिए। पर उन्होंने कुछ सजेशन दिया और उनके शिष्य ने गौ माता का गौमूत्र और ये वहाँ से वो ज़मीन को पूरा उन्होंने जैविक कर दिया और इतनी लैंड सॉफ्ट हो गई। अभी वहाँ पे थूली बोलते हैं महाराष्ट्र में, एक आइटम आती है थूली करके, वो ज़मीन हो रही है गेहूँ। गुरु महाराज के जो शब्दों में जो मतलब जो उनकी जो वाणी में जो तीव्रता है, कभी कभी लगता है कि महाराज क्यों इतना मतलब बोल रहे हैं। बट एक्चुअली हम जब देखा जाए तो पहले भी वर्णाश्रम धर्म का फॉलो बहुत अच्छी तरह से होता था, अभी नहीं हो रहा है, बट फिर भी गुरु महाराज का इतना प्रयत्न है। अभी आप जाएंगे तो अभी लास्ट ईयर महाराज ने आई थिंक 6 या 5 मंथ पूरा वर्ल्ड टूर किया महाराज ने। महाराज यहाँ से कंबोडिया गए, बाद में इंडोनेशिया गए, कजाकिस्तान गए, कनाडा गए, इंडिया में घूमे, सब जगह महाराज का जो अपने गुरु महाराज के प्रति जो उनका दृढ़ संकल्प है, अभी भी वो उसको पूरा करने में सक्षम है और वो कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। वो हमारे गुरु महाराज आगे भी करेंगे। इतना दृढ़ संकल्प मैंने कभी किसी में नहीं देखा था, पर गुरु महाराज की कृपा भी है, उनमें शक्ति है अलग से। गुरु महाराज ने ऑलवेज हमें जब उनका लेक्चर देखते हैं तो महाराज एक चीज़ बहुत बताते हैं कि अभी तो हम यहाँ पे ज़मीन से नहीं जुड़े हैं, पर फिर भी कि गौ माता, भूमि और नॉलेज, मदर लैंड, मदर काव और मदर प्रकृति, नेचर, मदर नेचर, अगर हम लोग उससे जितना जुड़ित रहेंगे उतनी हमें भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए लाभ होगा। वो कैसे है? तो महाराज बताते हैं कि हम अभी रजो और तमोगुण में हैं, तो सतोगुण में उठने के लिए हमें ये जो भूमि, गांव और ये जो मदर नॉलेज है उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे हमारे जब प्रकाश जी है, सीमांशु कितना देखिए आप, हर 2 दिन में भागवतम, हर 2 दिन में गीता क्लास। हम लोग बहुत एक्चुअली सौभाग्य है कि ऐसे वैष्णवी कृपा से हमें ये सब मिल रहा है, अदरवाइज वेर वी कैन फाउंड दिस। हम ये किधर भी जाए ये सब ढूंढ नहीं सकते। अब देखिए हर फ्राइडे लेक्चर हो रहा है, आशीमान प्रभु जी, अमलाल प्रभु जी, सनातन प्रभु जी। और सनातन प्रभु में एक बात बोल रहा हूँ, 2022 में सबसे पहले सनातन प्रभु और शिवगुना प्रभु की कृपा से ही मैं गुरु महाराज को मिल पाया था उधर उनके घर में। उनका घर मेरे लिए बहुत पतित पावन है, वो बहुत लकी मेरे लिए उनका घर। उधर ही मैं फर्स्ट टाइम गुरु महाराज से मिला था और मेरे मन में थी कि मैं गुरु महाराज को कुछ बोलूँ, कुछ बोल नहीं पाया था, पर महाराज ने मुझे सामने से बुलाया था। प्रभु भी गाड़ी में थे उस टाइम में और बोला था, वो बोले कि आप मतलब कि मैं आपको जानता हूँ क्या? मैं बोला गुरु महाराज वो पता नहीं, बट मैं आपको हृदय से जानता हूँ। और बाद में 2 साल के बाद गुरु महाराज की कृपा हो गई, नया जन्म मिला हमें। ये पुनर्जन्म ही है एक प्रकार से। शिलस्पना को सब कुछ पता है हमारे बारे में। तो ये वही कि हमें हमेशा, अभी मैं इतना दृढ़ संकल्पित नहीं हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज के वचनों को पूर्ण तरह फॉलो करूँ, बट मुझे आप प्लीज़ सब वैष्णवी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनके एटलीस्ट थोड़े बहुत तो उनके आज्ञा का पालन कर सकूं। अगर नहीं कर पाया तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं इस जन्म में क्यों आया पता नहीं, ऐसा होगा बाद में। अगर आप लोगों की कृपा रहेगी तो ही मैं कुछ आगे कर पाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पश्चाय भूतले श्रीमते भक्तिदागो स्वामिनीति नामिने नमस्ते गौर सेवायं सदा निरतात्मने युवदे प्रपादाथम वन्नाशम प्रचारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पश्चाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज की गुरु महाराज की 80 व्यास पूजा में मैं सभी प्रभु जी और माता जी को मेरा प्रणाम। मेरी कोई योग्यता नहीं है बोलने की, पर इस बारे में अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। तो गुरु महाराज सबके साथ प्रेम से, स्नेह से बात करते हैं और सबके साथ आत्मीयता से, प्रणाम से बात करते हैं। गुरु महाराज कलकत्ता में नामहट संकीर्तन सेंटर चालू किया था। गुरु महाराज ने वहाँ पे क्रांति लाई थी। 1984 में मंदिर में डाकू आ गए थे। महाराज बहादुर है, डाकू मंदिर में अंदर घुस गए थे। उन्होंने महाराज के ऊपर बॉम्ब डाला। गुरु महाराज एक लेग टोटली डैमेज हो गया था। गुरु महाराज घबराए नहीं, फिर गुरु महाराज को हॉस्पिटल ले गए और गुरु महाराज लगातार चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। डॉक्टर बोले ये कैसे हो सकता है। वहाँ से कलकत्ता ले जाया गया। उस समय भी अस्पताल में गुरु महाराज भजन ही गा रहे थे। गुरु महाराज 1976 में मायापुर आए थे। गुरु महाराज बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद का आदेश है कि हर इस्कॉन मंदिर में वर्णाश्रम कॉलेज खुले, वर्णाश्रम कॉलेज की स्थापना हो, वैदिक गुरुकुल खुले, वैदिक गायों पर निर्भर रहना, खेती प्रकृति पर निर्भर रहना, साधु संघ का होना, हरि नाम के जप पर आधार लेना चाहिए, भागवत सुनना, पढ़ना, मथुरा वृंदावन जाना चाहिए, हमारे घर को मथुरा बनाना चाहिए। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि सिंपल विलेज लाइफ ने हाई थिंकिंग, सिंपल विलेज लाइफ और हाई थिंकिंग रखनी चाहिए। जीवन बिताने के लिए खेती पर आधारित रहना चाहिए। लोन नहीं लेंगे तो सुखी होंगे, खेती करो, उधार मत लो। गुरु महाराज स्वभाव शांत और प्रेरणादायक है और जब गुरु महाराज की क्लास में यूट्यूब पे सुनती हूँ तो गुरु महाराज हंसते तो मुझे भी हंसी आ जाती है। गुरु महाराज अपना मिशन कभी नहीं भूलते। गुरु महाराज सह्याद्री सुरभि कुंज अभियान उनके शिष्यों द्वारा शुरू किया था। गुरु महाराज ने 108 गांवों में गोग्राम यात्रा आयोजित किया था। 108 गांवों में प्रचार किया। गुरु महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते थे, व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब वह अपने भोजन को पचा सकता है तो सुखी है। और हम गाय की रक्षा करते हैं, गाय के साथ रहते हैं तो हम सतोगुणों में रहते हैं और सब देवी देवता का आशीर्वाद भी रहता है और भगवान खुश भी रहते हैं। गुरु महाराज के वाक्य कहते हैं, एक व्यक्ति जो गौ माता की सेवा करता है और हर तरह से उनकी देखभाल करता है, उन्हें उनसे विशेष दुर्लभ वरदान प्राप्त होता है। कभी कभी अपने मन में भी गौ माता के प्रति ईर्ष्या न करें, हमेशा जितना हो सके उतना उन्हें खुश रखें और उनकी सेवा करें। गौ माता को प्रणाम करें और उनकी पूजा करें। गाय की सेवा से हमें दूध, दही, बटर, घी शुद्ध मिलता है और वो भगवान को अर्पित होता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे घरों में या बालकनी में फूलों या वेजिटेबल्स मिनी गार्डन करना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए। और हम शुद्ध भक्त और हम शुद्ध आहार, शुद्ध नेचर के साथ जीना चाहिए। गुरु महाराज बताते हैं कि हमें शुद्ध वातावरण, हमें शुद्ध खान पान के साथ जीना चाहिए और जो भी सफलता मिले और भगवान को अर्पित करना चाहिए। जितना अधिक हम आत्मनिर्भर कृषि आधारित जीवन की ओर लौटते हैं उतना ही हम वैदिक परंपराओं को लागू कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कई जगह इंडोनेशिया, कनाडा ऐसे बहुत जाकर प्रचार किया है। श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज को स्वस्थ रखें और हमें भक्ति में ऐसे गाइड करते रहे और आप सब वैष्णव माता जी, प्रभु जी को कृपा मेरी पर बनी रहे। मेरा अनुभव मैं शेयर करती हूँ। जब हम मायापुर गए थे तो दूसरे दिन गुरु महाराज के साथ सब शिष्यों का इंट्रोडक्शन होना था। हमारा नंबर आया तो मैंने गुरु महाराज को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद हुआ। गुरु महाराज को क्लास में यूट्यूब में सुनती थी, फिर उनको देखा तो बहुत आनंद हुआ। गुरु महाराज फिर मैंने गुरु महाराज को बताया कि दोनों बच्चे के नाम बदलने हैं। तब गुरु महाराज बोले, पहले आप दोनों का तो नाम बदल दूँ। और फिर दूसरे दिन दीक्षा समारोह था। सब हम गुरु महाराज के आश्रम में गए
वहाँ नंदीग्राम आश्रम में हरियाली और कृष्ण बलराम मंदिर सुंदर था। 4-5 माताजी हार की सेवा कर रहे थे। मैं वहाँ जाकर बैठी, फिर हमने हार बनाने की सेवा की। एक माताजी बोले कि मैं गुरु महाराज के लिए हार बनाती हूँ। तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं गुरु महाराज के लिए हार बनाऊंगी। फिर हमारी दीक्षा का टाइम हो गया और समारोह चालू हो गया। सबके साथ गुरु महाराज सबके साथ करुणा दिखाते हैं। शाम को जाने का टाइम हो गया। फिर गुरु महाराज को प्रणाम करने गए और मुझे गुरु महाराज को हार पहनाना था। गुरु महाराज थके लग रहे थे। वो अंदर के रूम में जा ही रहे थे। प्रभु जी ने बताया कि गुरु महाराज, माता जी ने हार बनाया है तो आप पहनेंगे? गुरु महाराज बोले हाँ, मैं पहनूंगा। फिर प्रभु जी ने हार पहनाया, फिर प्रणाम किया और गुरु महाराज ने मेरे ओर देखा और हंसा। गुरु महाराज की कृपा से मुझे कृपा मिली। दूसरे दिन मायापुर मंदिर में एक माताजी के द्वारा प्रभुपाद की पालकी सजाने का मुझे मौका मिला। लगातार 3 दिन मैंने प्रभुपाद की पालकी सजाई है। मुझे इतना आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। गुरु महाराज की कृपा है। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत स्वीट ऑफरिंग आपने। मैं सोच रहा था कि यदि आपकी ऑफरिंग की पूरे उसके नाम से रहता है 108 बार आपने गुरु महाराज का नाम लिया। बहुत अभी हम लोग परमात्मा जी के जो सुबह से उन्होंने अपनी ऑफरिंग लेके उसके लिए समझ रहे हैं। उसके बाद नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते विष्णु देवी गौरवान प्रचारिणे जय श्री वाली पार्षदेशिकारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अरुण गदाधर शिव शादी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और गुरुष्टु श्री प्रभुपाद और गुरुष्टु गुरु महाराज। I visited Mayapur Dham 2 times and I am so fortunate that I went 2 times in Guru Maharaj Ashram, Nandigram. Guru Maharaj built a Varnashram college in Mayapur. The environment is very beautiful and energetic. Guru Maharaj is also very energetic and powerful because Guru Maharaj aimed to serve Krishna and Srila Prabhupada. Guru Maharaj has 2 bulls at Nandigram, Mayapur. I saw Guru Maharaj always doing some service on this age too. Guru Maharaj just now finished his world tour when he visited Indonesia, Cambodia, Kazakhstan, Canada and more places in India too. Guru Maharaj is never tired and preached for Krishna and Srila Prabhupada. We have to learn from Guru Maharaj that never give up and try to do more service and more surrender to Krishna. Guru Maharaj is very kind and merciful. Hare Krishna. जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All glories to Srila Prabhupada. I went to Mayapur Dham in December 2024. First time I saw Guru Maharaj. Guru Maharaj is so merciful. In 2025, Guru Maharaj came to our home. Guru Maharaj gave me introduction to chant more. So I start chanting and follow Guru Maharaj words, and I chant 4 rounds of Japati. Jai Shri Prabhupada, Jai Guru Maharaj, Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामी इति नामने नमस्ते गौरसेवां सदा निमित्तात्मने युवागौरवादात्मक वर्णाश्रमप्रचारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निष्ठारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, सारे सीनियर डिवोटीज़, सानिया डिवोटीज़ एंड यशोमती नंदन प्रभु, शिवकुमार प्रभु, प्रभुराज प्रभु एंड ऑल सीनियर डिवोटीज़, माताजीज, थैंक यू वेरी मच। मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, सो प्लीज़ अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। ओम सौरभ्याय नमः। डियर गुरुदेव, please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Sri Guru and Gauranga. On this most auspicious occasion, I offer my heartfelt gratitude for your boundless mercy, guidance and compassion, your tireless dedication to spreading the teachings of Lord Krishna, spreading teachings of Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu's mission, and trying to involve each soul to understand and live their life as per Varnashram Dharma. This has been a constant source of inspiration in my life. Though I am unqualified and imperfect by lacking in many ways, but you continue to shower your blessings upon me, encouraging me to advance on path of devotional service. Gurudev, whatever little service I am able to perform is only by your mercy. Your words and examples remind me of true purpose of life, to serve Shri Shri Radha Shyam Sundar, Shri Shri Gaur Nitai with sincerity and devotion. I pray for the strength to follow your instructions more faithfully and to overcome my material tendencies. On this special day, I pray to the Lord to grant you long life, good health and continued strength to guide countless souls across the ocean of material existence. Please bless me that I may remain always engaged in devotional service under your shelter. I am full of faults and many imperfections in me. I beg forgiveness for my offenses and shortcomings, and I pray to always remain your humble servant. Your insignificant servant मधुकंठ दास। मैं कुछ हिंदी में बात करना चाहूँगा प्रभु।
मैं इस नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन नित्य सेविनी माता जी, भक्ति चारू महाराज और भक्ति विकास महाराज इनके मुख से कुछ श्रवण कर रहा था। उस समय मैंने नरसिम्हा चतुर्दशी की लीला श्रवण करते वक्त महाराज के जो पास्ट टाइम्स थे मायापुर के, वो पास्ट टाइम्स मैंने सुने। तो उस पास्ट टाइम्स में महाराज का, अभी माता जी और प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज ने कैसे सेक्रीफाइस किया है इस्कॉन के लिए और प्रभुपाद मिशन के लिए। सो इट्स वेरी रेयर। और महाराज को यूथ प्रीचिंग में बहुत मैं भक्ति विकास महाराज के लेक्चर में मैंने सुना था कि महाराज यूथ प्रीचिंग में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। महाराज को बहुत अच्छा लगता था यूथ प्रीचिंग करना। और महाराज वर्णाश्रम जो प्रोजेक्ट्स महाराज चलाते हैं उसमें भी महाराज का बहुत एंथुसियाज्म है। और एक इंसिडेंट है, हम 21st February 2021 वी गॉट इनिशिएटेड। सो पुणे से हम सारे डिवोटीज उडुपी कृष्णा गए थे। उडुपी में हमारा इनिशिएशन था हैब्री। सो देयर इज वन डिवोटी मिस, उन्हें ब्राह्मण इनिशिएशन होने वाली थी और हमारा फर्स्ट इनिशिएशन था। सो जब इनिशिएशन हमारा उस दिन हो गया, उसके दूसरे दिन हम उडुपी दर्शन के लिए निकले थे। तो वहाँ पे बहुत सारे विज़िट किए हमने। हम 3 डिवोटीज थे। तो उडुपी कृष्णा होके हम वहाँ से बहुत सारे दर्शन किए। तो उडुपी कृष्णा में एक स्टोर था। तो हमारे साथ जो प्रभु जी थे उन्होंने एक नरसिम्हा शालिग्राम शिला उन्होंने वहाँ से बाई ली थी। सॉरी प्रभु जी। तो वो जो शालिग्राम शिला जो प्रभु जी ने वहाँ से ली थी, वहाँ पे वो जो डिवोटीज है जिनके पास से उन्होंने वहाँ से ली थी, उन्होंने प्रॉपरली उस शिला को उन्होंने आचमन किया। उसके बाद में उसे प्रे किया, फिर उन्होंने वो पैक करके उन्होंने प्रॉपरली उनको प्रभु जी को दे दिया था। तो हम साथ में वो शालिग्राम शिला लेके तीनों डिवोटीज ऑटो से जा रहे थे इस्कॉन नरसिम्हा टेम्पल, नॉट इस्कॉन नरसिम्हा टेम्पल इन उडुपी। आई थिंक अ बिग टेम्पल इज देयर। सो वहाँ से जाते जाते प्रभु जी को थोड़ा वॉशरूम जाना था और उन्होंने उनकी जो बिड बैग थी वो मेरे पास दी और प्रभु जी गलती से वो शालिग्राम शिला लेके वॉशरूम में चले गए। सो हम उसके बाद में प्रभु जी को याद नहीं कि एग्जैक्टली उस शिला मतलब उनके किस्से में थी वो शिला। तो उनको पता नहीं था कि वो मेरे पास है या नहीं। तो मेरे को भी पता नहीं था, मुझे लगा कि उन्होंने अपने बिड बैग में रखा होगा। तो मैंने उनका बिड बैग कैरी किया, वो आए वहाँ से, फिर हम वापस ऑटो से जाने लगे आगे। सो करीबन हम 1 बजे उस टेंपल में, नरसिम्हा के टेंपल में हम पहुँचे। वहाँ पे चैंटिंग कर रहे थे, टेंपल बंद हो चुका था, 2 घंटे बाद खुलने वाला था। तो प्रभु जी ने वो छोटा सा जो डिब्बा दिया था वो उन्होंने निकाला और नरसिम्हा भगवान का वो डिब्बा खोल रहे थे, उतने में भगवान ने छलांग लगा के वो नीचे गिर गए। सो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ था वो शालिग्राम शिला। तो प्रभु जी ने देखा, मैंने भी देखा। सो प्रभु जी भी डर गए, हम लोग सब डर गए, बोले कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या हुआ। तो फिर वहाँ पे नरसिम्हा भगवान के मंदिर में वो जो पुजारी थे, हम सोच रहे थे कि वो शालिग्राम शिला को वहीं पे रखें। तो प्रभु जी से हमने वो पुजारी से हमने बात किया, बताया उनको कि ऐसे ऐसा है करके, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रखें। तो उन्होंने मना किया, बोले कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रख सकते, ये थोड़ा अशुभ है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो फिर प्रभु जी बहुत रोने लगे और हम लोग भी बहुत डर गए थे, मतलब कि नरसिम्हा शालिग्राम शिला है तो कुछ तो ऑफेंस हुआ है। तो प्रभु जी ने बताया कि ऐसे ऐसा ऑफेंस हुआ है करके। तो
वो शालिग्राम शिला को लेके हम वापस दर्शन वगैरह लिया नरसिम्हा भगवान का, और हम लोग वापस 4 बजे निकल गए थे हाइब्री। सो वहाँ पे जाते जाते प्रभु जी बहुत ही इसमें थे, और उसके बाद में जब हम लोग जा रहे थे बीच में नदी लगी तो प्रभु जी बोले मैं नदी में विसर्जन कर देता हूँ। मैंने उनको रोका, मैंने कि नहीं रुको ज़रा, हम महाराज के पास जाते हैं, महाराज से हम लोग बताते हैं जो भी इंसिडेंट हुआ। तो हम साथ में जा रहे थे, तो हम लोग महाराज को मिले उस दिन, और प्रभु जी ने सारा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो महाराज ने पूछा उनको कि आपने ये जो शालिग्राम शिला है आपने क्यों लिया? तो फिर उन्होंने बोला कि ये हमारे जो परंपरा फैमिली परंपरा में नरसिम्हा भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए मैंने वो शालिग्राम शिला घर पे इंस्टॉल करने के लिए मैंने खरीदी। तो महाराज ने उन्हें बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उन्हें बोला कि अभी ये जो शालिग्राम शिला आपके पास ही रखिएगा, और जब आप पुणे जाओगे वहाँ पे किसी सीनियर डिवोटी के घर पे 2-3 महीने आप वो जो शालिग्राम शिला है उसका उनके घर पे सेवा करिए उनकी। तो प्रभु जी ने जैसे महाराज ने बताया वैसे ही किया, और आफ्टर दैट 3-4 मंथ्स के बाद प्रभु जी ने फिर वो शालिग्राम शिला अपने घर पे इंस्टॉल की। तो मैंने वो शालिग्राम शिला की जो लीला देखी नरसिम्हा शालिग्राम शिला की, 100 एंड अबव वो जो शालिग्राम शिला है उन्होंने बहुत सारे भक्तों के जो प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट किए हुए हैं, और वो डिटेल बहुत रिवील करते हैं, वो शालिग्राम शिला रिवील करते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे 2-3 चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। तो मैंने उनका अभिषेक किया, मैंने उनका अभिषेक करने को बोला था प्रभु जी को, और थोड़ा दक्षिणा वगैरह दिया था। तो जो प्रॉब्लम्स थे वो दूसरे दिन पूरे से सॉल्व हो गए। मतलब मैं ये कहानी इसलिए बताया मैंने आपको, ये स्टोरी इसलिए बताया कि जो गुरु महाराज जो हमें बताते हैं, इफ यू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन सिंसियरली केयरफुली, देन भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं और वो रिवील करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, so I would like to today conclude here and then because of our topic. And then coming Friday again we'll get promotion. आने वाले शुक्रवार को हम सभी को अवसर मिलेगा तो हम लोग और भी महाराज पढ़ाएंगे। परम पूजनीय भक्तिराम गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। परम पूजनीय भक्तिराम गोस्वामी महाराज की जय। सदगुरु प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग आरती करेंगे। आज भक्तों ने 181 ऑफरिंग हैज बीन ऑफर्ड। भक्तों जिन्होंने सेवा की उनके बहुत आभार हैं। और जिन भक्तों ने आज ये कैजुअल में था, हमारे विक्रम प्रभु जी और हमारे नामित प्रभु, प्रभु जी, मधुकांत प्रभु, प्रभापति प्रभु, बहुत Okay, you back. उनके बाद में प्रभु जी की सेवा की थी वृंदावन धाम में और नीचे लाए गए। तो महाराज जा रहे थे सुबह सुबह, तो पूछा कि महाराज क्या ऑफर कर सकते हैं आपको लेकिन आने के लिए। और महाराज बोले कुछ ड्राई आइटम्स, मैंने पूछा कि कुछ पूरी पफ राइस, महाराज एक समोसा और समोसा महाराज। तो महाराज से आई लाइक पफ राइस बट आई लव समोसा। तो महाराज ने समोसा भेजे। तो हमारे प्रभु जी कृष्ण नारायण प्रभु जी वो समोसा बनाए थे। महाराज को पूछा इतिहास तो हमने वेट टू लर्न समोसा। Which Maharaj I learned from my father. This is authentic. Coming to Parampara, it's authentic. It's Varnashram. You learn from his father. So next day, our Prabhuji gave Parampara Prabhuji. Maharaj was giving massage that time. तो बोला कि प्रभु आपने जब हम भक्त होते हैं, बोला कि महाराज को बताइए कि मेरे पिताजी को मसाज करते हैं। तो महाराज को बताया मैंने भाई सेंड हिम। महाराज इज वेरी जॉली एक्चुअली। तो आप उनसे मिलेंगे तो बिल्कुल आप सही रूप से बात करेंगे, लेकिन इतना गंभीर रूप के साथ ना, और एक घर में मिले गए हैं महाराज को,
वहाँ पे जाते हुए बोला मेरे से घर है all vibration. All 24/7 there should be small vibration in the house. Doesn't sit for all of us. सभी घर में भगवान का टाइम बनना चाहिए कुछ होना चाहिए तो हम उसको घंटे हमारे घर में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और कभी भी महाराज लोगों में आएंगे कभी हमेशा वो ओम सूर्य नमः का कीर्तन सो हमेशा 24/7 so please will rise up from Bhagwan and despise it. Yes. After आरती उस समय Hare
Hare
राज का चाँद श्री शरणानंद स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। ISKCON and Deputy Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada की जय। एवं विश्वपाद परमहंस परिवार का आचार्य कृष्ण श्रीमद शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। नित्या विष्णु विष्णुपाद साक्षात वैरागी मूर्ति श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। जय नित्या विष्णु विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। जय नित्या विष्णु विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री रघुनाथ बाबाजी महाराज की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सस्त गोस्वामी प्रभुमंड की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्रीधरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राम श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण राधा श्याम सुंदर राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम को राधा कुंज गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नारायण धाम की जय। श्री राधा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्रनाथ धाम की जय। श्री रामायण की जय। रमणा माई की जय। कृष्णानी तुलसी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रणाम संकीर्तन ISKCON ट्रांसेंडेंटल श्री विष्णु की जय। गौर प्रेमानंद परम पूजनीय भक्ति राघव स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। परम पूजनीय भक्ति राघव स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। परम पूजनीय भक्ति राघव स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद All glories to Sangal devotees, Hare Krishna. All glories to Sangal devotees, Hare Krishna. All glories to Sangal devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki jai. Everyone will take it from the flower, so we can use it for treatment. So when we chant the flowers from one end to the other, and that's very helpful. उसको एक बार एक बार के महाराज का प्रणाम पूरा रहेगा इससे आप मिले सकते ऐसे करके 3 बार और आपको ग्रेट जाके हम लोग महाराज के घरों में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानामृतस्वधारया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवासभानवी देवी दयताय कृपावरे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाकर शिरोपानुग भक्तिदा शिवोर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपानुग सिद्धांत धांत हारिणे नमो किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विघ्नहर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसङ्कीर्तनं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते धरतां सुरतो भङ्गोर्मन्दोर्गति मद सर्वस्वपादां भोजौ राधा नमो दिव्य वृन्दारण्यकल्पद्रुमा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालीभिः श्रीमद्व्यासरसारम्भी वंशीवटतटे स्थितः कर्षणवेणुः स्वरेण गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामिनिति नामिने नमस्ते गौर सेवयं सदा निर्दितात्मने विवदो प्रभुपदार्थं वर्णाश्रम प्रचारिणे ईशां पुष्पाञ्जलिः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामिनिति नामिने नमस्ते गौर सेव्यं सदा निर्दितात्मने विवादो प्रभुपदार्थं वर्णाश्रम प्रचारिणे ईशां पुष्पाञ्जलिः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामिनिति नामिने नमस्ते गौर सेव्यं सदा निर्दितात्मने विवदो प्रभुपदार्थं वर्णाश्रम प्रचारिणे
हे शांत पुष्पांजलि। परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। की जय। कैमरा ऑन भाई क्वेश्चन नहीं है तो उसके बाद हम लोग प्रसाद में दर्शन नहीं प्रसाद और प्रसाद होगा।